Right. Good evening, guys. Welcome, Anmol. I am sure you are there. So if you can just Yes, switch on yes, your sir. camera. Yes, sir. Yeah. Hi. How are you? I'm good, sir. All right. So first and foremost, congratulations for wonderful performance, not only in CAT and Snap, but most importantly in the interviews. Right. So Thank you, sir. I think you have cleared IIM Indore, which came yesterday before we communicated with the students. So बाद में आया result. Yes, IIM sir. Indore हो गया, SP Jain, NITI, IMT and Symbiosis. Yes, sir. And his result awaited is IIM Bangalore. Yes, sir. And Lucknow. IIM Bangalore, Lucknow and XLRI. And yes, sir. XLRI Kozhikode also. Yeah. So I think the bigger ones are remaining, yet to come. Yes, But sir. still, So today IIM Ahmedabad result is out. yeah, today, but I didn't. You did not have Yeah, that yeah. call, right? So No. yeah, I know that IIM Ahmedabad results are out today. So really, very proud feeling for me because it यार जिसके भी कॉल कन्वर्ट होते हैं ना इतने सारे, तो एक ये कॉन्फिडेंस तो फिर आ जाता है कि चलो सब चीज सही हुई है करके, ठीक है. एंड एनीबॉडी विल सेटल फॉर एसपीजे एंड निटी, मतलब ठीक है, तो अपना काम तो हो ही गया है, राइट. Yes, सो sir. वेरी गुड एंड वंडरफुली, मतलब जो प्रिपरेशन तुमने की. एंड हम लोग बस एक कैजुअल इंटरेक्शन, हाउ इट स्टार्टेड, सो यू कैन बी एब्सोल्युटली, मतलब जो भी लगता है वो बोल दो, कोई वो नहीं है. तो सबसे पहले मतलब हम शुरुआत करते कि आई रिमेम्बर यू स्टार्टेड प्रिपरेशन लास्ट ईयर सेम टाइम, Yes, मार्च sir. So May end I started. में एंड, बिकॉज मुझे याद है उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था एंड यू ज्वाइंड अवर ऑनलाइन क्लासेस ही, तब तुम ज्वाइन की थी अप्रैल में एंड या मई जो भी रहा होगा. हाँ. एंड आई रिमेम्बर you were working somewhere. So Yes. just for others, let me give some background information about Anmol. Anmol is NIT Raipur pass out. Yes, sir. 2018. Yes, sir. 2018 batch NIT Raipur pass out. Then she was working in which company? Reliance. Anmol, your video got, yeah. Hindustan Zinc Limited. Vedanta. Yeah. Hindustan Zinc Limited. Sorry, Sir, am I audible? इतने लोगों का. Hindustan Zinc Limited. Yeah, Hindustan Zinc Limited. So I got confused because I took interview of many students. So Hindustan Zinc Limited, she was working, and last year around the same time she took the bold decision of leaving the job and preparing for CAT. Many students do that, but जो एक रिस्क फैक्टर जो लेते हैं, मतलब वो मानना पड़ेगा उस चीज को, बिकॉज एक ऑफ कोर्स व्हेन यू आर लिविंग अ गुड सेटल्ड जॉब एंड यू आर एस्पायरिंग फॉर समथिंग जो हो सकता है जिसमें रिजल्ट पॉजिटिव ना आए, बहुत जिसमें कंपटीशन काफी ज्यादा स्टिफ है, सो डेफिनेटली वो एक गट्सी डिसीजन होता है. एंड लास्ट ईयर में वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की. 6 महीने का लगभग टाइम रहा कैट के लिए. एंड आई स्टिल रिमेम्बर जो भी फेजेस प्रिपरेशन में आए, तो वो मुझे ध्यान है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी. सो जब तुम यहाँ पर आई थी, तो how did your family support your decision where you wanted to take a break from the job? Sir, my mother was fine with it. My father was little anxious about it, that what will I do and all that. But I convinced them. So that's all. And what was your mental state? क्यों छोड़ा था job? मतलब was it like कि बहुत boring है corporate? Sir, when I left the job, I did not think about CAT. Okay. So I left the job because I did not think that I was growing there. That is the main reason. It was like constant, and I was not learning anything. So that was the reason I left the job. And when I came back, I thought of like starting a business or something, but then COVID was there. So I like, if I want to do a business, then I thought that only thing which aligns with it is MBA. So that's how I decided to do MBA. And in mid-May, I decided to study for CAT. Right. ओके. सो अब वो एंजाइटी होती थी क्या कि अगर नहीं हुआ तो सब क्या बोलेंगे, जॉब भी छोड़ दिया और ये भी कर दिया, कुछ नहीं किया? सर, I मतलब
personally, I don't think much about what others will think, but anxiety obviously was there. What I will do if this does not happen, then what will I do? So that was the constant anxiety. Okay, all right. So, so किस तरीके का जॉब था तुम्हारा which you did not like, and tell me about after NIT you went to the job, तो वो थोड़ा सा बाकी लोग भी उसको समझ पाए कि after the college कैसे क्या हुआ था and किस तरीके का जॉब था. तो सर कॉलेज में तो सिंपल प्लेसमेंट हुआ एंड मुझे ऐसा लगा था कि मेरे को इंटरेस्ट आएगा कोर जॉब में. मैं आई एम अ मेटलर्जिकल इंजीनियर. ओके, तो फिर वो जॉब में ऐसा हुआ कि शिफ्ट जॉब था. आई वाज शिफ्ट इंचार्ज. So my work was proper, like I have to go to plant, I have to make I have to lead the workers basically. So that was my job. But since now everything is automated, so like there was very less time when I have to actually use my mind or do something, to be honest. So that's why I wanted to do something challenging, and therefore I thought of leaving the job. And फिर से यहाँ के वही बस कैट का सोचा. अच्छा, तो तुम जब कॉलेज में थी, फाइनल ईयर कॉलेज में, डिड यू अपीयर फॉर कैट देन, या उस समय कॉलेज में नहीं सोचा था क्या कैट वेट देना है कुछ भी? सर मेरे को ऐसा लगता था नहीं हो पाएगा मुझसे कैट, मतलब बस नहीं हो पाएगा, तो मैं ऐसे सोचती भी नहीं थी. Because I know Shriya is your friend, right? Shriya Shukla. तो वो क्योंकि साथ में प्रिपेयर कर रही थी, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि that time, or was it clear कि जॉब करनी है पहले? So I was clear कि जॉब करना है मेरे को. Okay, all right. So so when you came back here and started your preparation, so tell me about your preparation part. कैसे, मतलब that is the most important part, of course, which everybody will like to know. How did you prepare for CAT first and foremost? क्या क्या problems हुई बीच में? So sir, first mock I gave May में मैंने first mock दिया था without studying, and I scored 20 marks. Sir, if you remember, I called you and I said that I scored 20 marks. Yeah, I know. So Anmol, just एक मिनट का यहाँ पर मैं कुछ फिर से तुम वो लाइन रिपीट करोगी? तुमने प्रिपरेशन चालू करने से पहले ही मॉक दिया था. That is what you said. हाँ. So I didn't want to, but since you forced us, so I gave one mock, right. And so, it was. राइट. तो अनमोल, मैं ये बच्चों को यहीं पर ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये मैं इनको कई दिनों से बोल रहा हूँ कि पहले एक मॉक दो, तभी पता चलेगा कहां पर आप स्टैंड कर रहे हो. एंड आई एम श्योर मैंने तुम लोगों को भी ये बोला था, डोंट जज योरसेल्फ इन फर्स्ट 2-3 मॉक्स. स्कोर कम ही आएगा, 20-25 आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा. आई एम टेलिंग टू दीज गाइज द सेम थिंग, बट वेरी फ्यू पीपल ट्रस्ट मी. आई एम श्योर लास्ट ईयर भी बहुत कम ट्रस्ट किए थे, तुम ही 5-6 लोग ट्रस्ट किए थे और तुम ही लोगों का हुआ है इवेंचुअली. आई लेट मी टेल यू, ठीक है? तो प्लीज या कंटिन्यू. वो मॉक देने के बाद क्या हुआ था फिर? सर वो मैं इन लोग की सिचुएशन समझ सकती हूँ. व्हेन आई वाज लाइक लीस्ट इंटरेस्टेड टू गिव मॉक, बट दे दो यार एक मॉक. मतलब उससे क्या है ना, व्हेन वी नो कि हम कितने नीचे हैं, तो अपने आप मेहनत ज्यादा होती है. तो इसलिए एक मॉक तो देना चाहिए, आई वुड से फर्स्ट. देन उसके बाद फिर मेरे को समझ आ गया कि लाइक आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एकदम, क्योंकि जॉब में भी आई डिड नॉट यूज माय ब्रेन मच. तो आई वाज लाइक अब पूरा शुरू करना है फिर से. तो अब मेरा पेन पॉइंट मैं बोलूंगी VARC था सबसे ज्यादा. बाकी क्वांट तो मजा आता है करने में, तो वो हो जाता था. VARC में आई कॉन्स्टेंटली यूज टू स्कोर लेस. स्टार्टिंग में 10, 15, 9 बस इतना ही स्कोर करती थी मैं. Then what I did for VARC, जो मैं सबको बोलूंगी करने, is sectional test. मतलब सेक्शनल टेस्ट से मेरे स्कोर्स लिटरली ऐसे एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हुए थे. मैं डेली सेक्शनल टेस्ट देती थी एक. एंड आर्टिकल्स रीड करना भी इंपॉर्टेंट है. आई यूज्ड टू रीड आर्टिकल्स डेली. लाइक फर्स्ट थिंग आई डिड इन मॉर्निंग इज टू रीड आर्टिकल्स फ्रॉम वेरियस साइट्स. एऑन और सर बताए होंगे साइट्स. तो आर्टिकल्स रीड करना और सेक्शनल टेस्ट देना, अगर ये दो चीज करेंगे तो VARC का स्कोर पक्का एक इम्प्रूव हो जाएगा. एकदम शॉर्ट मेरे को ऐसा लगता है कि ये दो चीज से हो जाएगा. तो आई थिंक कि ये VARC हो गया. और DILR में भी स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, बिकॉज ऐसा लगा था कि दिमाग ही नहीं चल रहा है. बट मेरे को लगा कि DILR में एक चीज जो करना चाहिए इज टू स्पेंड टू मच टाइम इवन इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट. मतलब नहीं सॉल्व हो रहा है, पूरा आधा दिन मैंने एक आध पजल में स्पेंड किया है. तो वो आई थिंक हमको अभी करना चाहिए, क्योंकि अभी तो प्लेंटी ऑफ टाइम है. तो वी शुड ट्राई नॉट टू लुक एट सोल्यूशन एट ऑल राइट नाउ. मतलब एकदम खुद से करना है. दिमाग एकदम खराब हो जाता है, लेकिन करना है खुद से. वो फिर जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना जब सॉल्व होता है, तो वो बहुत अलग है, और उसमें दिमाग खुलता है. वहां पे हमारा इंप्रूवमेंट हो रहा है एक्चुअली. तो आई थिंक वो एक DILR में है. और क्वांट में तो आई थिंक प्रैक्टिस, मतलब
बस प्रैक्टिस करते रहो, जहां से क्वेश्चंस मिल रहे हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. Anmol, I will add another thing here. Even for quant, I believe same thing applies. Like LRDI, सोल्यूशन नहीं, उसमें सॉल्यूशन नहीं देखना है. या LRDI और क्वांट में आधा घंटा लग जाए, 1 घंटा लग जाए, जैसे तुमने बोला आधा दिन लग जाए LRDI में, दे देना है उसको टाइम. दिमाग में युद्ध चलता रहे, एंग्जाइटी बनी रहे, तभी ये दोनों टॉपिक्स इंप्रूव होते हैं. VARC में यू आर फ्री टू सी दी सॉल्यूशंस. यस, राइट. एक्चुअली. सो एंड कुछ चीजें मैं सबको पॉइंट आउट करना चाहूंगा. अनमोल ने फर्स्ट टेस्ट मई में दिया एंड कैट में 98 पॉइंट सम परसेंटाइल. यस सर. स्नैप में 99 प्लस आई थिंक. यस सर, 99 पॉइंट समथिंग. या सो 99 परसेंटाइल. पहला टेस्ट मई में दिया, 20 मार्क्स आए, उससे वो वहां तक की जर्नी कर ली. आई एम श्योर इफ ऑफ कोर्स बीच में काफी मेहनत की जैसा हम देख रहे हैं. ऑफ कोर्स अगर आप भी ये कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी. And VARC में very rightly pointed out that you have to read daily and sectional test हर चीज में हेल्प करता है. बेसिकली गाइज, मैं जितने भी अपने स्टूडेंट्स को बुलवाऊंगा, बोलूंगा यहाँ पर, कभी बुलवाऊंगा आगे जो भी, वो सब आपको कुछ इस तरीके की बातें ही बोलेंगे. सबका थोड़ा बहुत अलग होगा, बट टेस्ट देने सब बोलेंगे. वन कॉमन फीचर दैट एवरी स्टूडेंट विल से कि टेस्ट दो टेस्ट दो टेस्ट दो. जिससे आप सब दूर भागते हो उसको मत करो. दैट इज व्हाट आई विल से. एंड आई रियली लाइक LRDI के लिए जो तुमने बताया. आई पर्सनली बिलीव वैसे ही इंप्रूव होता है. एंड या सो टेल मी, मतलब ये भी हो ही रहा था, मुझे याद है कि तुम ये भी फोन करती थी कि मैं पढ़ रही हूँ बट फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं वाला जो स्टफ होता था. आई थिंक दैट पीरियड वाज अगस्त के आसपास. तो वो बहुत डिफिकल्ट पीरियड है. और आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है कि मॉक के स्कोर्स को दिल पे नहीं लेना है. मतलब शुड नॉट टेक इट टू सीरियसली, ऑल्सो नॉट टू लाइटली. एकदम सीरियसली नहीं लेना है कि अब इसमें कम आ रहा है तो फाइनल कम आएगा. ये तो सबसे बड़ा मिथ है अगर कोई बोलता है तो. और लाइटली इसलिए नहीं लेना है कि हमें चेक करना है कि हम कहाँ वीक है और उसमें वर्क करना है. तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉक को एकदम दिल पे मत लो, क्योंकि मैं ये गलती की थी बीच में. राइट. तो तुम उस समय का अपना दिमाग में क्या चल रहा था एक बार बता. व्हाट काइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड यू वर एंड हाउ डिड यू केम आउट ऑफ इट व्हेन मार्क्स वर नॉट इंक्रीजिंग एफर्ट डालने के बाद भी. मैं एक्चुअली बहुत पैनिक करती थी मॉक देने से पहले, बिकॉज आई एम लाइक कम मार्क्स नहीं सहन होंगे बस. मतलब ऐसा है ना कि शुरू से अच्छा पढ़ना है, तो शुरू से अच्छा पढ़े हैं तो ऐसे कम मार्क्स नहीं दिख पाते हैं. तो मेरी एक मेंटालिटी थी कि मैं कम मार्क्स नहीं दिख पाऊंगी. तो मैं बहुत पैनिक करती थी. तो मैं सर से बात भी की थी. फिर सर मेडिटेशन एंड ऑल बोले थे, एंड एक्चुअली आई डिड मेडिटेशन. बहुत क्लीशे साउंड करेगा लेकिन मेडिटेशन करने से मैं लिटरली कम पैनिक करने लगी. मतलब ये एकदम सच है. मेडिटेशन हेल्प मी अलॉट. मैं पैनिक कम करने लगी और मैं फिर शांति से मॉक दे रही थी. एटलीस्ट मार्क्स पर धीरे धीरे इंप्रूव होंगे, वो अपने आप इंप्रूव होंगे, उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है. यू नो अनमोल, हम लोग जो चीजें बोलते हैं वो सभी स्टूडेंट्स को क्लीशेड ही लगता है. हाँ, न्यूज़पेपर बट वो पढ़ने एक्चुअली ट्रू है. मेडिटेशन बोल रहा है, कोई नई चीज बता. बिकॉज पीपल कम टू अस विद सम काइंड ऑफ कि कुछ मैजिक दे देंगे और उससे फट से हमारा काम बन जाएगा. इट डजंट वर्क. बट राइट. सो गुड कि एक और चीज तुमने बताई. अच्छा, तो फिर मार्क्स तो मुझे याद है कि कैट के पहले भी यू आर श्योर अबाउट द क्वांट पार्ट. आई थिंक इफ आई रिमेम्बर कि ये तो ठीक हो जाएगा. इंग्लिश को लेकर के थोड़ा सा बाद में भी लगता था कि फ्लक्चुएट होना हो जाए. मेरा एक टाइम था जब कॉन्स्टेंटली अच्छा आने लगा, फिर उसके बाद फिर से फ्लक्चुएट होने लगा. बट कॉन्फिडेंस कम नहीं करना है, दैट इज द थिंग. मतलब मेरा एक बार सर 0 आया था VARC मॉक में टाइम के. इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट मेरा 0 आया था. बट फिर भी मैं अपने होप, उस टाइम तक मेरी आदत हो गई थी कि कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है. ओके, ऑलराइट. सो दैट इज ग्रेट. सो जस्ट अ मिनट अनमोल, 1 मिनट. यस सर. somebody pinned up अपना वीडियो पिन कर दिया था वहां पर आकर के, तो वही दिख रहा था. तो आई डोंट नो व्हाई. एनीवेज, कमिंग बैक टू योर प्रिपरेशंस एंड टेल मी अबाउट व्हाट वाज कैट डे के पहले वाला, 1-2 दिन पहले वाला, एंड कैट एक्चुअल कैट में क्या हुआ था. ये आप लोगों के समय कैट का पैटर्न भी, मतलब साल भर व्हाट पैटर्न यू स्टडीड, शायद अगस्त में केम टू रियलाइज कि पैटर्न चेंज हुआ है. बट मेरे ख्याल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा. एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ इन द फाइनल फ्यू डेज, 2-3 days एंड कैट डे. सर ऐसे तो बोलते कि मॉक नहीं देना चाहिए, but I gave one mock, like 2 days before only I gave one mock. I just wanted to have that flow. इसलिए मैंने एक mock दिया था.
तो मेरे मार्क्स 80 आए थे and उस दिन मैं फिर कुछ नहीं पढ़ी, मैं एक्चुअली एकदम वो हो गई थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वही है कि कुछ भी हो सकता है, मतलब डी डे में जो हो रहा है वो मॉक से डिफरेंट होता है। अगर हम काम और कॉन्फिडेंट रहेंगे ना तो सच में अच्छा आ जाएगा मार्क्स, क्योंकि बाकी बच्चे इजी नहीं है काम और कॉन्फिडेंट रहना, सब लोग नहीं रह पाते हैं, तो यू कैन एक्सेल इन दैट, मुझको ऐसा लगता है। एकदम नहीं रहे। आई ऑलवेज हैव टोल्ड, आई थिंक हर बैच में मैं बोलता हूँ, अभी भी बोलूंगा कि 90% पीपल गो एंड अंडर परफॉर्म ऑन द डे। हाँ एग्जैक्टली। 90% लोग अपने लेवल का भी परफॉर्मेंस नहीं करते, अंडर परफॉर्म करके ही आते हैं। अब वो किसी भी वजह से होता है, साल भर नहीं पढ़ते, फिर अचानक से लगता है आज कुछ हो जाए, वो तो वैसे ही नहीं होने वाला है। तो एटलीस्ट कूल काम कंपोज रह करके अगर दे तो बेटर हमेशा ही रहता है वो। ठीक है। तो ड्यूरिंग द कैट 2 hours ऑफ कैट, मतलब 3 घंटे का नॉर्मली होता है, तुम लोगों के समय 2 घंटे का हुआ। अब आई डोंट नो हाउ दिस विल इट विल हैपन दिस ईयर, डिपेंड्स अपॉन पेंडेमिक। तो वो कुछ ऐसा पीरियड आया था कि 2 घंटे में कैट में की लगा कि आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, पेपर बिगड़ जाएगा करके? सर हाँ सर, वीएआरसी तो वेंट ओके, लाइक वीएआरसी मेरे को ऐसे समझ नहीं आता कैसा गया हाँ, वो एग्जैक्टली, किसी को नहीं तो आता, वो मुझे भी चला नहीं गया। आता। हाँ। हाँ हाँ, फिर उसके बाद डीआईएलआर तो सर सही में डिफिकल्ट था हमारा। तो मैंने जो सेट पकड़ा था वो मैं बीच में अटक गई थी, और आई एक्चुअली थॉट ऑफ लाइक लीविंग द क्लासरूम, बट ऑप्शन नहीं है वो, हम लीव नहीं कर सकते क्लासरूम, तो मैं सोची वो टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं ट्राई करती हूँ एकदम। तो वो सच में वाला टाइम था कि मतलब एकदम मैं सच में सोच रही थी कि छोड़ देती हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, वो बन ही नहीं रहा था वो सेट। लेकिन पिछली बार मैंने स्टार्ट किया तो वो एक सेट मेरा नहीं बिगाड़ा। द थिंग इज कि मेरे को कॉन्ट बहुत मजा आता है, मतलब मैं मेरा कितना भी दिमाग खराब हो, मजा आता है सॉल्व करने में, तो वो मजा आना चाहिए, वो बहुत हेल्प करता है। तो डीआईएलआर के बाद तो मैंने कॉन्ट में तो मेरे को मजा आने लगा, तो मैं इसे सॉल्व करने लगी। तो इसलिए वो मेरा मतलब उसके कारण, डीआईएलआर के कारण मेरा कॉन्ट नहीं बिगड़ा, तो वो इम्पोर्टेंट है। ये सोचना है कि अगर टफ है तो सबके लिए टफ है, राइट। तो डीआईएलआर टफ था तो सबके लिए टफ था, तो इसीलिए मेरा उतना वो फिर हैम्पर नहीं किया। वेरी गुड। एंड मतलब ये फीलिंग सबके साथ आती है, एग्जाम हॉल के अंदर डिफिकल्ट सेक्शन आता है तो छोड़ दो करके। So हाँ after the CAT and other results came out, अब आते हैं मेन प्रेपरेशन ऑफ इंटरव्यूज। तो व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस, मतलब प्रिपरेशन के समय? and can you speak from the point of view of a normal person or an average student of our profile भिलाई रायपुर से जो होते हैं, तो what kind of challenges they face? सर, फर्स्ट तो आई थिंक आपने जो बोला था कि इंटरव्यू में डबल पढ़ना पड़ेगा, जिस दिन आपने ये बोला था ना उस दिन मैं एक्चुअली ज्यादा पढ़ने लगी थी कि हाँ यार ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो एक तो न्यूज़पेपर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब पूरा एकदम पढ़ डालो न्यूज़पेपर। और यूट्यूब वीडियोस मेरे को काफी हेल्प किए बहुत ज्यादा, आजकल तो सब डालने लगे हैं करंट अफेयर्स पे, तो वो बहुत हेल्प किया। बाकी आई थिंक कि कॉन्फिडेंट रहना एकदम इम्पोर्टेंट है, कॉन्फिडेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक बोलने का अगर आप अच्छा फ्लो रखोगे ना, इंट्रैक्शन रखोगे ना, तो फिर आप कुछ बेकार भी बोलोगे ना तो लोगों को पसंद आ जाता है, ये मेरे को एक चीज नोटिस हुई है। मतलब थोड़ा इंटरेक्टिव और ऐसे खुश होके अच्छे से बोलो, तो ये एक प्रैक्टिस के साथ आ जाता है। जैसे मैं स्टार्टिंग में बहुत डरती थी मॉक्स में, जब मॉक इंटरव्यूज होते थे, बट बाद में वो धीरे धीरे अपने आप चला जाता है डर। I remember first, I think you were the one जिसके साथ सबसे ज्यादा मॉक इंटरव्यूज हम लोगों ने किए थे। हाँ हाँ and I remember first एक दो मॉक में you were bit anxious, हाँ and मेरे ख्याल से बाद तक के मैं वो फीडबैक देता रहा कि तुम हाँ you are very good, you will make it, don't worry, don't worry, don't worry, but हाँ वो फिर भी रहता था बाद तक के। but eventually it turned out really good. So tell me, एक कोई यूनिक ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंस किसी कॉलेज का रहा हो, मतलब, या तुम कुछ बताना चाहोगे कि व्हाट आर द थिंग्स दैट these students can keep in mind, जो तुम्हें लगता है कि तुम अगर पहले से करती तो it would have helped you more in the interviews? सर, जैसे एक इंटरव्यू था जिसमें मेरे को आंसर नहीं पता थे, तो मतलब मैं फिर चिढ़ गई थी, क्योंकि इट वाज लाइक कि ऐसे कुछ भी क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। तो फिर जो क्वेश्चन के आंसर आते थे उसके भी मैंने ढंग से आंसर नहीं दिए, तो ये मेरे को उसके बाद मेरे को बहुत बुरा लगा कि मैंने पूरा इंटरव्यू बिगाड़ दिया। तो ये चीज मैंने नेक्स्ट में सुधारी है। जैसे कोझिकोड में काफी टफ इंटरव्यू हुआ था मेरा, मतलब एकदम आउट ऑफ नोवेयर पूछ रहे थे, बट आई वाज कंटिन्यूअसली स्माइलिंग एंड आई वाज सेइंग सर आई डोंट नो, सर आई डोंट नो। तो ये चीज मेरे को लगता है कि मेरे को हर इंटरव्यूज में अप्लाई करना था। तो ये एक है, मतलब चिढ़ना नहीं है, यू हैव टू बी काम ऑलवेज। और फिर ज्योग्राफी और ये सब की नॉलेज काफी इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को बात बात तक समझ आई। तो आई थिंक ये सबसे टच में रहना चाहिए। वी Okay. जनरली डोंट कीप टच विद दी।
जनरल नॉलेज पुअर होता है इन जनरल बहुत ही पुअर भी नहीं बोलना चाहिए, पैथेटिक ही बोलना चाहिए मुझे, एंड वो हमने देखा ही था। अच्छा एक चीज मुझे बताओ अनमोल, इफ यू कंपेयर योरसेल्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ, ऐसे हम देख रहे हैं with the other बैचमेट जो उस समय सीएल आते थे एंड दोज हु यूज्ड टू स्टडी, देखो हम लोग तो क्लास में सभी को एक ही चीज बताए थे, इट्स नॉट दैट कि कुछ मैं तुम्हें अलग से बता रहा था, जब तक कि कोई फोन नहीं करता है। तो व्हाट डिड यू फाइंड कि व्हाट अदर्स कमिटेड, जो तुम्हें लगा कि बाकियों की यार ये मिस्टेक है जो एटलीस्ट तुमने नहीं की? इन जनरल जो 80% 90% क्राउड जो मिस्टेक करती है, तो तुम क्या एक दो चीजें ऐसी कुछ बता सकते हो दैट? एक मैं आई वाज कंटिन्यूअसली हार्ड वर्किंग, मतलब आई वाज वेरी कंसिस्टेंट। मेरे को लगता है ये सब नहीं थे, मेरे मॉक में कम आए ज्यादा आए कुछ भी हो, आई वाज कंटिन्यूअसली स्टडिंग, मतलब कंटिन्यूअसली मेरा हार्ड वर्क था। तो आई थिंक ये एक मेरे को लगता है डिफरेंट था सबसे। और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लगा कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल आई थिंक कि बाकियों से बेटर है। मतलब मैं कॉन्फिडेंट रह लेती हूँ जहाँ पे रहना रहता है, तो मेरे को लगता है कि ये कॉन्फिडेंट रहने की जो स्किल है ना, ऐसे तुरंत नहीं आती है, तो इसके लिए मेरे को लगता है कि प्रैक्टिस करना चाहिए। छोटी छोटी चीज के लिए भी अगर हम कॉन्फिडेंट होने लगे ना, तो वो अपने आप से पर्सनैलिटी में आ जाती है। तो आई थिंक ये चीज पे भी वर्क कर सकते हैं अभी से। ठीक है, इट्स सो मेनली अभी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ एवरीबॉडी वांट्स टू नो देन डोंट गिव अप इज द थिंग, मतलब लगे रहो लगे रहो। और मेरा विश्वास मानो, लगे रहोगे तो तुम निकल ही जाओगे, क्योंकि 80-90% लोग छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते। ठीक है, तो वो सिर्फ होता ये है कि हो गया, क्लास हो गई, थोड़ा बहुत मन किया, 4 दिन का जोश, 4 दिन पढ़ते हैं, फिर अगले 15 डेज नहीं पढ़ते, फिर सर ने डांट लगाया, फिर पढ़ते, फिर आखिरी में सर की बात भी वो नहीं सुनते, मतलब किसी की भी बात नहीं सुनते। सो दैट विल वर्क in your favor if you guys keep on working, putting effort. Okay, so Anmol, कोई इनके लिए मैसेज, how I mean let me ask a very straightforward question. कोई मटेरियल बुक्स वगैरह जैसे तुम सजेस्ट करना चाहोगी इनको, अपार्ट फ्रॉम करियर लॉन्चर का मटेरियल तुम्हें कैसे हेल्प किया, एंड ऑफ कोर्स हाउ डिड वी हेल्प और वे आर नॉट हेल्पफुल टू यू, यू कैन टेल दैट आल्सो। तो नहीं, हेल्पफुल तो थे आप लोग बहुत ज्यादा। आई थिंक कि क्वांट के लिए वो जो मटेरियल देते हो आप लोग, वो जो हर टॉपिक का रहता है, आई थिंक वो करना चाहिए। आई डिड दैट कम्प्लीटली। और डीआईआर के लिए आई थिंक टाइम का जो बेसिक मटेरियल है, अगर सिर्फ बेसिक समझना है तो टाइम, मतलब मेरे को लगा कि सीएल का थोड़ा ज्यादा लेवल का है जो एक्चुअली आता है कैट में। बट अगर पहले बेसिक समझना है तो उसके लिए टाइम का मटेरियल, अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो टाइम का मटेरियल कर सकते हैं। और क्वांट के लिए अरुण शर्मा बिसाइड सीएल, मतलब मैंने सीएल भी किया था, उसके बाद अरुण शर्मा का लेवल 1 एंड लेवल 2 भी किया था। ठीक, तो वो भी कर सकते हैं। ओके, राइट। So Arpita is asking, I think Arpita Bhattacharya is asking, तुम्हारा डेली रूटीन क्या था कैट प्रिपरेशन के लिए? अब मैं तो खाली थी, मतलब मेरे पास और कुछ काम नहीं था, तो सब खाली है। सुबह उठ के सबसे पहले मेरा काम, अच्छा सब लोग खाली हैं, ठीक है। क्या है, अब तेरे को कॉलेज तो जो है ऑनलाइन लगता है, तो हाँ, अभी भी ये कॉलेज 40 लोग जो बैठे हैं, इसमें से 10 यहाँ पे बस ऐसे ही बैठे होंगे, सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो आई होप उससे ज्यादा ना हो, बट तुम्हें पता है, तो एवरीबडी इज फ्री, यू कैन टेल कितना पढ़ना है, दे विल स्टडी, इफ दे आर पैशनेट दे विल स्टडी। तो सबसे पहले मैं सुबह उठ के तो यही काम रहता था कि आर्टिकल्स रीड करना है, बिकॉज अगर वो मैं नहीं की ना तो वो फिर मैं लेट कर करके वो नहीं पढ़ती थी। तो आर्टिकल्स रीड करना मैंडेटरी है। फिर ऑनेस्टली मैंने एक दिन भी नहीं ऐसा हुआ है कि आर्टिकल्स नहीं रीड किया। तो डेली आर्टिकल्स रीड करना है। मैं ऐसे ना टाइम डिवाइड कर दी थी दिन का कि 2-3 घंटे जैसे वीएआरसी के लिए और बाकी एलआरडीआई और क्वांट के लिए। तो वीएआरसी में मैं एक सेक्शनल टेस्ट देती थी और आर्टिकल्स रीड करती थी, ये कंपलसरी था मेरा। फिर डीआईएलआर में 4 सेट सॉल्व करने की कोशिश करना, बट नहीं भी होता है तो इट्स ओके। अगर टाइम देना है, स्पेशली अगर 2 में टाइम लग जा रहा है तो इट्स ओके, लेकिन जब टाइम पास आएगा ना एग्जाम का, तब टाइमर के साथ करना बहुत जरूरी है। और फॉन्ट के लिए तो डेली मतलब मैं कुछ 50 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेती थी। बाद में जब स्पीड बढ़ जाती है तो फिर अपने आप हो जाते हैं एकदम कम टाइम में। तो ये करती थी मैं। और सेक्शनल टेस्ट देते रहना प्लीज, मतलब बार बार बोल रही हूँ मैं, सेक्शनल टेस्ट से काफी इम्प्रूव होता है। राहुल पूछ रहा है, डज रीडिंग न्यूज़पेपर एंड नॉवेल हेल्प इन वीआरसी सेक्शन? राहुल, लेट मी टेल यू, 60% is your reading and 40% is what we do in class. रीडिंग नहीं तो वो 40% कोई काम का नहीं, दोनों जरूरी है, बट रीडिंग इज एब्सोल्युटली एसेंशियल
and merely restricting yourself to Times of India or Hindu will not help much. Well, it is good to begin with, but it will not help much. Yeah, Anmol, your point of view. स्टार्टिंग में मैं सिर्फ न्यूज़पेपर ही पढ़ती थी, फिर बाद में मेरे को लगा कि इतना हेल्प नहीं हो रहा है, फिर मैं ये साइट ए ऑन और ये सब साइट से पढ़ने लगी, क्योंकि उसमें काफी टफ आर्टिकल्स होते हैं ना, शुरू में ऐसे पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, बट डू रीड दैट, आर्टिकल्स रीड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. समटाइम्स यू कैन रीड न्यूज़पेपर इफ यू वांट, बट मोस्टली आई थिंक ऐसे साइट वाले बीबीपी और ये सब के आर्टिकल्स पढ़ना. Okay, I will share the. I think I have shared before, but I will once again share the links कि कौन सी वेबसाइट आप पढ़ सकते हो. Follow that. I think that will help you. Sandeep is asking anything about test analysis for each section. तो I think guys you can speak also है ना, तो आप बोल करके भी पूछ सकते हो. संदीप वो क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, तो what you mean you can ask perhaps. सर मॉक्स के लिए टेस्ट एनालिसिस पूछ रहा था मैं, सेक्शन वाइज कैसे करना चाहिए. यस सर. VARC का तो पहले मैं करती नहीं थी एनालिसिस, फिर बाद में मैं करने लगी. तो आप पूरे पैसेजेस फिर से रीड करना, मतलब जैसे 1 घंटे का अगर है, 1 घंटे समझ लो VARC को दिए थे मॉक के टाइम, तो एनालिसिस के टाइम 2 घंटे तो लग जाते हैं. तो उसको फिर से रीड करके पैसेजेस फिर से आंसर्स मार्क करने की कोशिश करना. यू विल गेट टू नो कि कहाँ गलत कर रहे हैं, और हेल्प करता है एनालिसिस बहुत ज्यादा, तो करना है. और DILR में तो पूरे सेट्स मैं फिर से बनाती थी, मतलब जो बना चुकी हूँ वो भी फिर से बनाती थी, क्योंकि समटाइम्स ना जो बना चुके होते हैं वो भी नहीं बनते हैं फिर से DILR के लिए. तो पूरे सेट फिर से बनाती थी, एंड क्वांट में भी वही क्वेश्चन सॉल्व करती थी पूरे फिर से, और बहुत टाइम लगता था मेरे को एनालिसिस में, बहुत टाइम लगता था. मतलब 2 घंटे का अगर मॉक है तो मेरे को 5-6 घंटे लग जाते थे एनालिसिस में. बट धीरे धीरे उसमें आप कर लोगे, मतलब वो सबका इंडिविजुअल होता है, यू कैन डू इट इन लेस टाइम ऑल्सो, बट अच्छे से करना होता है एनालिसिस. एक अलग सेपरेट कॉपी थी मेरी मॉक एनालिसिस की. और फिर जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उसको मार्क कर लेना चाहिए. There is one option available as bookmark. अगर आप लोग सब टेस्ट की एनालिसिस करते हैं तो what Anmol is saying, bookmark का एक ऑप्शन रहता है. कोई क्वेश्चन लगता है कि डिफिकल्ट है, वापस रिविजिट करना है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो उसको बुकमार्क करके रख लो, ताकि बाद में फिर से आप पूरे क्वेश्चंस बुकमार्क वाले एक जगह पर आ जाते हैं. तो यू कैन चेक दैट. ठीक है. फॉन्ट में फॉर्मूला एक जगह पे लिखना, मतलब पूरे फॉर्मूला, वो इम्पोर्टेंट है. यानी ऑर्गेनाइज जितनी कर सको अपनी स्टडीज. अच्छा, और कोई क्वेश्चन बेटा आप लोग पूछ सकते हो. इजी सेट्स के लिए मैं ये बोलूंगी, सबका एक तो अपना वो रहता है. जैसे वेन डायग्राम्स मेरे को पसंद थे, तो मैं वेन डायग्राम्स देख के बनाने लगती थी. मेरे को अरेंजमेंट पसंद थे. तो यू हैव टू फाइंड आउट योर स्ट्रॉन्ग सेक्शन, मतलब जो तुमको लगता है कि स्ट्रॉन्ग है तुम्हारा, वो देख के फिर बनाने लग जाना. बट ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि एक बार मेरे को याद है मेरा मॉक में अरेंजमेंट सिंस मेरा फेवरेट था, तो मैं एकदम शुरू हो गई थी अरेंजमेंट के लिए, बट वो टफेस्ट था, मतलब वेरी डिफिकल्ट सेट था वो एक लौटा. तो यू शुड बी एबल टू जज आफ्टर सम टाइम, यू विल बी एबल टू जज कि अरेंजमेंट मेरा फेवरेट है, लेकिन ये वाला सेट जो है वो टफ लग रहा है, तो उसको नहीं करना है. ये इतना अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा. सर हाँ, युवराज स्पीकिंग. सर मेरा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं एक्चुअली, 11th-12th भी और ऐसे कॉलेज में बीकॉम कर रहा हूँ, तो कई बार क्वांट में काफी डिफिकल्टीज होती है. तो मेरे को बेसिक क्लियर करने के लिए आपसे पूछना था, मतलब कुछ एडवाइस बेसिक क्लियर करने के लिए. मेरे को सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक अच्छा कर लो, काम अपना हो जाएगा. डोंट वरी अबाउट ज्योमेट्री नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, उसको जाने दो. अभी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट अस फोकस ऑन अरिथमेटिक. देयर विल बी अराउंड, अनमोल कितने क्वेश्चंस थे? 60-70% आई गेस अरिथमेटिक. 50% आराम से तो होता ही है. 50% तो पक्का अरिथमेटिक है, और 50% मार्क्स कोई लेकर के आ जाए क्वांट में. व्हाट वाज योर मार्क्स बाय द वे? 40 था मेरा शायद. हाँ, 42. हाँ, तो 42 आउट ऑफ कितना, 78 या 80 मार्क्स का था. मैंने 14 अटेम्प्ट किए थे, मेरे 14 सही थे. और कितने परसेंटाइल थे? 98.8 ऐसा कुछ था. 90 परसेंटाइल के लिए 25 नंबर चाहिए था. 25 नंबर चाहिए, यानी 8 क्वेश्चन सही करने थे. क्योंकि अभी असाइनमेंट मिला था हम लोग को, तो जब मैं टॉपिक टेस्ट करने गया तो काफी बेकार परफॉर्मेंस था. तो काफी वो, मैं बता रहा हूँ युवराज, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम 1000 क्वेश्चन बना के भी टेस्ट देने जाओगे तो टेस्ट बेकार ही होगा. फर्स्ट फ्यू टेस्ट बाउंड टू बी खराब होना,
उसको लेकर के तो सोचना ही नहीं। आई टेल यू 1000 क्वेश्चन बना लो, टाइम का मटेरियल बना लो, सीएल का मटेरियल बना लो, अरुण शर्मा बना लो, सब बना लो, 2-3 टेस्ट तो हवा ही नहीं लगेगी कि क्या हो रहा है, वो स्लोली ही होता है वो, ठीक है। तो व्हाट आई विल सजेस्ट इज लेवल 1 के क्वेश्चंस और लेवल 2 के क्वेश्चंस हमारे बुक में है, अगर वो आपसे खुद से बन रहे हैं तो आपका काम हो गया। और क्लास शीट, इतनी चीजें काफी होंगी अगर आप कर लिए तो। उसके बाद हम डेफिनेटली अरुण शर्मा भी सॉल्व कर सकते हैं, अगेन लेवल 1 एंड लेवल 2। हाँ, अब अगर स्पेसिफिक आ जाए कि मेरे को प्रॉब्लम होती है अरिथमेटिक में, तो देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके की चीजों में प्रॉब्लम है, एंड देन वी नीड टू सिट डाउन विद दैट। सर एक चीज ओके सर, विच आई थिंक मैंने अलग किया था सबसे, एक और चीज कि मैं डाउट्स बहुत ज्यादा पूछती थी, मतलब मेरे हर एक डाउट क्लियर होने चाहिए। मैं टेलीग्राम में से बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, मतलब टीचर्स को भी कितना परेशान करेंगे ना, मैं रॉय सर से बहुत पूछती थी, मतलब आप उनसे पूछ सकते हो, मैं बहुत डाउट मेरे को सबका पता है। हाँ, तुम शशांक सर को भी पकड़ पकड़ के बहुत हाँ डाउट उनको पूछती भी थी। मैं बहुत पूछती थी, और मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी मतलब एकदम बच्चे वाले डाउट भी मैं डालती थी। तो जब डाउट्स पूरे क्लियर होते हैं ना, तो फिर मतलब टॉपिक भी क्रिस्टल क्लियर होती है दिमाग में। फिर तो डाउट बिल्कुल पूछना, मतलब बिल्कुल भी शर्माना मत कि सर लोग क्या सोचेंगे या वैसा कुछ। हम लोग एंड अच्छा, कभी ऐसा हुआ क्या कि हमने डाउट क्लियर नहीं किए? नहीं, वैसा नहीं हुआ तो। कभी नहीं। हाँ, मैं आई एम श्योर कि ये बोला होगा कि अरे कल कर देते हैं, परसों कर देते हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ रहता था। तो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग टू एवरीवन, वो कभी भी नहीं होगा कि हम लोग डाउट क्लियर नहीं कर रहे हैं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कभी होगा ही नहीं, बिकॉज वी वांट टू हेल्प यू। तो डाउट्स हो तो आप बिल्कुल पूछिए। ये जरूर हो सकता है कि वीकेंड से कि अभी नहीं, एक दिन बाद, दैट यू, आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड दैट पार्ट। यू कैन आस्क अस, अपने फ्रेंड से पूछ लो, बट जैसा कि अनमोल कह रही है कि डाउट क्लियर होना जरूरी है, वो किसी से भी क्लियर हो। एक चीज ना मैं और बोलूंगा कि जो अनमोल के साथ भी था और बाकी लोगों के साथ भी था इस बैच में, जो अच्छा किए हैं, दैट इज, और हर बैच में वो होता है जो अच्छा किए करते हैं, उनको अगर किसी चीज में यकीन नहीं भी है तो दे डू इट बिकॉज वी आर सेइंग। जैसे कि पहला मॉक बोला नहीं, दो मैंने वो ज्वाइन की थी और मैं उसको फोर्स करके बोला था नहीं मॉक देना ही है, दे दो दे दो। उसने, उसको मन नहीं था, उसने बोला तब भी दे दिया। किसी और ने कुछ बोला होगा, उसको गलत भी लगा होगा, तो करके देख लिया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अवर थिंग विल नॉट वर्क आउट, बट आई टेल यू 10 में से बोलते हैं तो 6-7 चीजें तो काम की हर के लिए क्लिक कर जाती है, 2-3 चीजें काम की नहीं होती, बिकॉज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। So what I want to say is कि that you need to have some trust। हम लोगों पे कर लो, हम पे नहीं कर रहे हो तो अपने सीनियर्स पे करो, लेकिन ऐसे सीनियर्स पे जो अच्छा किए हैं। अब तुम लोग किस पे ट्रस्ट करते हो? जो कैट में खुद 60 परसेंटाइल लेके आया है और फिर वो ज्ञान देता है भाई कैट बहुत टफ है। अरे तेरा तो 10th में कम परसेंट है, तेरा वैसे ही नहीं होगा। अरे तू खुद अपना तो देख भाई। हम जाके वो 60-70 परसेंटाइल वाले से ज्ञान लेते हैं। ज्ञान लेना है तो ऐसे लोगों से लीजिए जो किसी अच्छी जगह पर हैं, जो खुद क्वालिफाई कर लिए, अपने टीचर से ले लीजिए, या टेलीग्राम ग्रुप्स हैं बहुत सारे, यू कैन फाइंड द पीपल देयर हु कैन हेल्प यू। सो प्लीज डू नॉट हेजिटेट। और इंग्लिश के लिए सर आपकी क्लास काफी अच्छी रहती थी, मतलब मेरे को बहुत इंटरेक्टिव लगती थी वो, क्योंकि आप ऐसे सॉल्व करना और आंसर देना रहता था, तो वो मजा आता था, वो भी अच्छी थी। आई होप ये साल वाले भी ये समझे। पिछले साल से मैंने इंटरेक्शन बढ़ा दिया है इनके लिए। अब तो मैं तो इनको पहले ही शीट दे देता हूँ कि ये शीट पढ़ के आओ, इसके आरसीज अपन बनाएंगे। हाँ, तो वो क्लासेस अच्छी रहती है। ठीक। या और एनी अदर क्वेश्चन? Pritish is asking how to increase my interest in RC. आरसी में मेरे को भी स्टार्टिंग में नहीं आता था इंटरेस्ट, बट जब आर्टिकल्स डेली रीड करने लगोगे ना, तो अपने आप इंटरेस्ट डेवलप होगा। डेली न्यू आर्टिकल्स रीड करो, नई इंटरेस्ट आ रहा है तो भी रीड करो, पक्का एक इंटरेस्ट आएगा। मतलब कुछ कुछ ऐसे इतनी अच्छी अच्छी चीजें पता चलती है ना न्यू आर्टिकल्स रीड करके, बहुत मजा आता है। मतलब मैं बोल रही हूँ ये आई वो, मतलब मैं बिल्कुल, मेरी रीड करने की हैबिट नहीं थी, पर अब मैं नॉवेल्स वगैरह रीड कर लेती हूँ। बिल्कुल। मैं आप लोगों को सभी को बोल रहा हूँ कि ना ये पैशन और मोटिवेशन ये बहुत ज्यादा ओवररेटेड टर्म्स है। आई टेल यू व्हाट टेक्स यू टू सक्सेस, इट इज ऑलवेज डिसिप्लिन, नथिंग एल्स। डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। वो पैशन और मोटिवेशन सिर्फ मूवी में और मोटिवेशनल स्पीकर्स के मुंह से अच्छा लगता है, 4 दिन की बात रहती है। जिस दिन डिसिप्लिन आ गया कि घटिया लग रहा है तब भी करना है, समझ लो कि अपना नैया पार होने वाली, यू आर इन द राइट डायरेक्शन। आई थिंक दैट्स व्हाट अनमोल, तुमने भी, तुम्हारा भी जो बात था वो ये कि करते रहे करते रहे करते रहे विदाउट वरिंग अबाउट द स्कोर और समथिंग।
कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग सब ना पहले ये देखते हैं कि मेरा अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब हम मोटिवेशन पे कुछ ज्यादा चले जाते हैं रादर देन और दूसरों को देखना भी, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरों को देख के वो नहीं होना है। बिल्कुल, हर कोई अपनी हेल्दी लड़ाई अपने कंपटीशन, स्तर जैसे पर लड़ता है। हेल्दी कंपटीशन जैसे लेंगे तो इट विल हेल्प, अदरवाइज वो बहुत डिग्रेडिंग है मतलब परफॉर्मेंस के लिए। ओके, अच्छा प्रीतिश, मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, तुमको किस तरीके के आर्टिकल से किस तरीके की चीजें अच्छी लगती है? मतलब लेट अस फॉरगेट अबाउट रीडिंग, फिर भी मैं अगर ऑप्शन दूं कि अगर पढ़ना ही है प्रीतिश तो क्या पढ़ना पसंद करोगे? टाइप करके बता देना। अनमोल तुमसे कोई कह रहा है, हिमेश, हाय कांग्रेट्स अनमोल, हिमेश सलूजा is saying, hi congrats Anmol, what would you suggest in terms of time management for someone currently working? सर आई थिंक कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो काम कर, मतलब जो वर्क कर ही रहे थे एंड दे क्लियर्ड इट, तो आई थिंक कि उन लोग को तो और डबल हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज डिफिकल्ट कि हम 12 घंटे, मतलब जितने भी 9-10 घंटे काम कर रहे हो तो पढ़ना है। तो आई थिंक कि ये कर सकते हैं कि जब काम कर रहे हैं बीच में टाइम तो मिलता ही है, तो वीआरसी का पार्ट तो तब हो जाएगा, मतलब जब भी काम फ्री है तो आर्टिकल्स रीड करो बैठ के, तो ये हो सकता है। प्लस क्वांट भी सॉल्व कर सकते हैं काम करते करते, जब भी थोड़ा टाइम मिल रहा है 10 क्वेश्चन रख लो सॉल्व करते, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स प्लांट में करते थे ये काम। दे यूज टू टेक कुछ क्वेश्चन लेके जाते थे और प्लांट में काम करते करते वो क्वांट के क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तो वो एक कर सकते हैं। एंड डीआईएल वो एक डिसिप्लिन ही है इसके लिए भी, मतलब एकदम स्ट्रिक्टली टाइम फिक्स कर लो कि करना ही है टाइम पे। Mehak is asking how we can improve our vocab, if you can help in that. वोकैबुलरी के लिए मैं एक चीज करती थी, मैं जो भी आर्टिकल्स रीड करती थी और न्यूज़पेपर रीड करती थी ना, तो जो भी वर्ड्स मेरे को नहीं पता होते थे, मेरी पूरी कॉपी बनी हुई है, तो मैं वो वर्ड्स लिख के उसके मीनिंग लिखती थी और डेली रात को मैं ऐसे रीड करती थी वो वर्ड। और मेरे को लगा नहीं था ये हेल्प करेगा, बट इट सीरियसली हेल्प, मतलब मेरे को पैसेज पढ़ते पढ़ते इतना मजा आता था कि मेरे को वर्ड्स पता है, मीनिंग पता है, तो वो हेल्प करता है। एकदम बेसिक चीजें कर सकते हैं, मतलब जो भी न्यू वर्ड्स आ रहे हैं बस लिखो, मीनिंग लिखो और वो डेली एक बार रिवाइज कर लो बस। मतलब मुझे ये नहीं पता था अनमोल, ये आज तुमसे बात करके पता चल रहा है कि तुम काफी ऑर्गेनाइज्ड हो पढ़ने में। हाँ, मतलब मैं बहुत कुछ करती हूँ। विच इज वेरी गुड थिंग कि नोट्स बनाना, डाउट्स है तो एक तरफ लिखना, एनालिसिस की कॉपी अलग, वोकैब की कॉपी अलग। मेरी वोकैब की कॉपी अभी तक के मतलब मेरे पास है, जस्ट टू शो पीपल कि देखो भाई हम भी बनाते थे, ऐसी कोई चीज नहीं बोलते जो तुम्हें करना है, बट दैट रियली हेल्प्स। वोकैब की एक अलग से नोटबुक बनाओ एंड सी वॉट एवर थिंग्स वी आर सेइंग, अगेन ये ऐसा बस ना हो कि आज किया कल किया और उसके बाद फिर हवा निकल गई। प्लीज अंडरस्टैंड, टेक इट एज अ चैलेंज कि करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है, अपने आप हो जाएगा सब सही। एंड अक्षय टोपले, योर जूनियर इज हियर। हाय अक्षय, आई डिड नॉट नो कि तुम भी यहाँ पर हो। ठीक है, सो ये अक्षय कह रहा है, मैम हाउ यू मैनेज द स्ट्रेस दैट जनरेटेड आफ्टर लिविंग योर जॉब एंड कांग्रेट्स ऑन योर सक्सेस, नाइस टू सी माय मेटलर्जिकल सीनियर हियर। तो आफ्टर लीविंग द जॉब जो स्ट्रेस था, मैं पूरा स्ट्रेस ऐसे पढ़ने में निकाल देती थी। मेरे को ऐसे टेंशन होती थी क्या मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगी, बस मैं ये सोच के पढ़ने ही बैठ जाती थी। मतलब टेंशन तो होती थी बट आई जस्ट यूज टू, मतलब उसको मैं अच्छे उसके लिए यूज करती थी, बोल सकते हैं कि आई यूज टू स्टडी फॉर दैट। और दोस्त लोग से बात करते रहती थी, मेरे साथ हम लोग एक्चुअली पूरा ग्रुप छोड़े थे हम लोग, तो मिल के सब बात करते रहते थे कि यार जॉब छोड़ दिए क्या होगा। Mayank is asking, ma'am, preparation on day-to-day basis should be time-oriented or task-oriented? टास्क ओरिएंटेड डेफिनेटली, मतलब टाइम से क्या करना है, कुछ लोग 2 घंटे में कर लेते हैं, कुछ लोग 10 घंटे में करते हैं, तो उस पर नहीं ध्यान देना है, बस तुम्हारा टास्क होना चाहिए। मेरा टास्क रहता था कि मेरे को ये पढ़ना है, एक एक मैं मतलब कुछ आई थिंक 1-2 महीने तो मैं डेली 2 महीने तो मैं एक सेक्शनल टेस्ट तीनों के देती थी डेली, तो मेरा वो फिक्स रहता था कि ये सब करना ही है। टाइम ओरिएंटेड तो नहीं होना चाहिए। टेस्ट टेस्ट टेस्ट, क्लास अटेंड करो, टेस्ट दो, टेस्ट की एनालिसिस करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, टाइम दैट्स चला जाता है। कैट की प्रिपरेशन की समरी यही है। अपने आप मार्क्स में अच्छा आने लगेगा। राइट, बिल्कुल, धीरे धीरे सब इंप्रूव हो जाता है। अच्छा, प्रीतिश कह रहा है कि बायोग्राफीज पढ़ा है, आरसी पढ़ना अच्छा नहीं। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ प्रीतिश, आरसी पढ़ना जनरली किसी भी बच्चे को शुरू में अच्छा नहीं लगता, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू। जैसे मैं बोलूं कि प्रीतिश क्या पढ़ेगा, फिर भी
हिस्ट्री का आर्टिकल बोलूं, साइंस का आर्टिकल बोलूं, फिलोसफी का आर्टिकल बोलूं, कोई ऐसा जो तुम्हें पसंद हो, तो आई विल टेल यू दी सोर्स की चलो वहां से हम पढ़ना चालू करते हैं। इस वजह से मैं पूछा था। ठीक है, तो अपना इंटरेस्ट उठा लो, अपना इंटरेस्ट उठा लो आप, और उसके बाद आप उस पे आगे बढ़ो। हिस्ट्री अच्छा लगता है तो हिस्ट्री से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ना चालू करो। आई विल टेल यू दी वेबसाइट और उनको विजिट कर सकते हो। साइकोलॉजी के आर्टिकल्स भी मजा आते हैं पढ़ने में, मतलब अगर इंटरेस्ट साइकोलॉजी वाले। ऑफ कोर्स। युवराज इज आस्किंग was work experience helpful in interviews? युवराज, दो चीजें हैं डेफिनेटली इसके साथ है। अगले वीक से आप फ्रेशर्स को भी मैं यहाँ पर बुला के लाऊंगा, उनका भी कन्वर्ट हो गया है, तो बिल्कुल ये बात अगर दिमाग में आ रही है कि भाई हमारे तो वर्क एक्स वाले नहीं, तो उसको भूल जाना। मैं तुम्हारे ही बीआईटी शंकरा के सीनियर्स को बुलाऊंगा, हु आर फ्रेशर्स एंड हु आर डूइंग वेल, हु हैव डन वेल। ठीक है, या बट यू कैन कंटिन्यू। थी, मतलब वन ऑफ माय फ्रेंड हु कन्वर्टेड एफएमएस, शी वाज फ्रेशर ओनली। श्रेया, या वो फ्रेशर थी, बॉदर नहीं करता। इनफैक्ट फ्रेशर भी नहीं बोलना चाहिए अनमोल, वो तो ड्रॉप था उसका। एग्जैक्टली, हाँ, उसका तो ड्रॉप था। कॉलेज के बाद उसने ड्रॉप लिया था, तब भी उसने कन्वर्ट कर लिया था। तो इट डजंट मैटर, इट मैटर्स कि हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, और उस चीज को तुम हमारे ऊपर छोड़ दो। आपको क्या आंसर बोलना है वो आप बिल्कुल छोड़ दो। इंटरव्यू के बारे में भी सोचना ही नहीं चाहिए, मतलब मैं नहीं सोचती थी पहले, अभी सिर्फ कैट में अच्छा फोड़ना है, उसके बाद इंटरव्यू सोचना है। राहुल कुमार पूछ रहा है कि YMBA में क्या आंसर दिए। राहुल, मैं उसको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि मैं अपने किसी भी स्टूडेंट को एक दूसरे का आंसर कॉपी पेस्ट करने की सख्त मना करता हूं। एंड अब अनमोल, हम कितने बार इस क्वेश्चन के लिए बैठे होंगे या डिस्कस किए होंगे, अब यू कैन जस्ट टेल। सी व्हाई आई एम सेइंग सो, नो बिकॉज लोगों को लगता है कि कैसे प्रिपेयर करेंगे। सो आई विल जस्ट लाइक यू टू हाईलाइट समथिंग अबाउट हाउ वी प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू एंड हाउ मच टाइम वी गेव फॉर ईच स्टूडेंट। मतलब वी का मतलब मैं ही दिया था, बट फिर भी सो इनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि उस चीज के लिए तो सेफ है ये। हाँ, ये सब, और ये सब एक अलग प्रोसेस है, इसके लिए भी बहुत टाइम लगेगा, बट दिस इज नॉट समथिंग यू शुड थिंक अबाउट नाउ। इसका अलग प्रोसेस है और सर करवा देंगे, मतलब मैं तो सर पे छोड़ दी, सर बोलते थे मैं करवा दूंगा, तो ठीक है, इंटरव्यू सर पे देखा जाएगा। तो इंटरव्यू मेरे को बस ये है कि हर बच्चे की कहानी जो है वो मेरे को पता होनी चाहिए। उसकी कहानी पता है तो हम आंसर सब बना लेते थे। तो काफी उसके अच्छा लिए एक्सपीरियंस है इंटरव्यू भी, मतलब यू गेट टू नो अबाउट योरसेल्फ, एकदम वैसा वाला एक्सपीरियंस है। तो अभी our इंटरव्यू क्लासेस विल बी, मैं अपने मुंह से ही बोल देता हूँ, इट विल बी एक्सीलेंट। मतलब मेरे को पता है, बिकॉज हाउ मच एफर्ट गोज, एक एक के लिए क्या क्या करते हैं। तो डू नॉट वरी अबाउट दैट पार्ट। तुम सब जितने स्टूडेंट्स हो, तुम मुझे कॉल ला करके दे दो। मैं पिछले बैच को बोला था, उसके पिछले बैच को बोला था, हर बैच को बोलता हूँ, मेरी गारंटी की टॉप 2 कॉल्स में से एक मैं कन्वर्ट करवाऊंगा। यू गेट मी दी कॉल्स, 1 out of top 2 we will convert it. Okay, all right. और कोई अनमोल के लिए क्वेश्चन? अनमोल, मुझे तो तुम लोगों को पढ़ाने में शुरू में भले मजा नहीं आता था, बट बाद में जब मैंने 10-12 स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए थे, जो बाद में हमने किया, या तुम लोगों का जो मैंने ग्रुप अलग बनाया, जो कि मैं हर साल करता हूं, और वो मुझे नहीं लगता मुझे किसी से छुपाना भी चाहिए। जब मुझे दिख जाता है कि ये 12-15 लोग मेरा रिजल्ट ला सकते हैं, एंड इट यूज्ड टू बी, मतलब वो 5 लोग भी हो सकते हैं, इट्स नॉट कि आई फिक्स नंबर इन माय माइंड कि 12 लोग लूंगा या 5 दिखेंगे तो 5 पे ही मेहनत करूंगा। बट व्हेन डिड वी स्टार्ट डूइंग दैट? मेहनत यानी मतलब गाइडेंस बस था, मेहनत तो तुम ही लोग करते थे उस समय। आई थिंक 2 months बिफोर सितंबर ऑनवर्ड्स। तो मुझे उस समय मुझे मजा आने लगा, क्योंकि तुम लोग फिर मेरी बात सुन करके करते थे। मतलब तुम लोग पहले भी सुनते ही रहे होगे, बट फिर उन लोगों में मेहनत करने में अलग मजा आता है। तो आई रियली एंजॉयड whatever interaction we had with you all guys that time. Okay. Rilesh is asking a relevant question, वो तुमको भी शायद दिख ही रहा होगा स्क्रीन में। हाँ, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स, तो मतलब वो जो कॉलेज में इंटर्नशिप करते हैं वो। रिलेश, क्या पूछना चाह रहे हो? सर जैसे अभी अपने कॉलेज में आता है, अभी रिसेंटली माई कैप्टन का एक आया था, तो उसमें इंटर्नशिप प्रोग्राम्स रहते हैं। तो अगर अभी हम लोग ग्रेजुएशन के टाइम पे करेंगे तो वो एमबीए के एडमिशन के टाइम पे हेल्प करेगा क्या? आई थिंक फ्रेशर हो तो करेगा, मतलब अगर तुम जॉब नहीं करने वाले, जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, राइट?
हाँ तो फिर करेगा। ओके। नहीं, और मैं अगर इसको मैं ऐसे बोलता हूँ रिलेश, सिंसियरली करोगे तो करेगा, टाइम पास करोगे तो कुछ नहीं करेगा, बिकॉज उसको मैं हटा के सीधा बोल दूंगा भाई ये इंटरव्यू में बोलना ही नहीं है। और अगर सिंसियरली करोगे तो हर जगह इसके बारे में तुम अच्छा बोल सकते हो। मेरे को बाद में अपनी 5 अच्छी चीजें बताना जो बाकियों से अलग है, वी विल फ्रेम स्टोरी अराउंड इट। अगर तुम्हारा इंटर्नशिप उस पर फिट नहीं होता है तो मैं सीधा हटा दूंगा। एंड आई एम वेरी एडमेंट अबाउट हाउ आई वांट यू पीपल टू आंसर द इंटरव्यूज। मतलब भले आपकी पढ़ाई को लेकर के मैं ढील छोड़ दूंगा, बट अगर इंटरव्यू का कॉल आए तो आई गेट एडमेंट, नहीं इसको ऐसे ही करना है करके, देन यू डिसाइड, वैसा वाला होगा। तो करो, बहुत अच्छी बात है, सबके लिए बोल रहा हूँ, इंटर्नशिप विल हेल्प यू अ लॉट, बट मेक श्योर कि आप मीनिंगफुल इंटर्नशिप करें, जो टाइम उसमें लगता है वो टाइम दें और कुछ सीखें वहां से, तो उसका इंटरव्यू में बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है। और मोटिवेशन के लिए सर एक चीज मेरे काम आई थी कि मतलब मेरे को ऐसा जब सबका ज्यादा आ रहा था मुझसे स्टार्टिंग में, जब आप ऐसा नाम लेते थे ना कि मानसी और ऐसे आयुष इन लोग का आया है, तो मतलब मेरे को ऐसा है कि मेरा भी नाम आना चाहिए, मेरा भी आना चाहिए, तो वो इट हेल्प मी अलॉट। मतलब उससे मेरे को ऐसा था कि अब मेरा भी आना चाहिए, सर बोले अनमोल तो फिर मैं ऐसे ज्यादा पढ़ती थी इसके लिए। तो ये जेन्युइनली हर किसी को लगता है उसका भी नाम आना हाँ चाहिए, और तो यहीं पर डिफरेंस हो जाता है, वो लोग जो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं कि मेरा भी है, और फिर बाकी लोग छोड़ देते हैं, अरे यार मेरा नहीं आ रहा है। तो हाँ वो 2 मिनट का नहीं होना चाहिए, वो अगर रहे मोटिवेशन तो वो बहुत हेल्प वेरी करता वेरी है। ऑनेस्ट फीडबैक ऑन दैट, मतलब तुमने जो बोला वो हाँ सबके साथ होता है। और या अर्पिता, यू हैव अ क्वेश्चन, प्लीज आस्क। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। हाय। हाय, मुझे बस ये पूछना था कि मैं कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करती हूँ, तो क्या कैट के प्रिपरेशन के लिए जैसे मैथ स्ट्रीम वाले होते हैं और कॉमर्स स्ट्रीम वाले में कुछ डिफिकल्टीज आती है कॉमर्स स्ट्रीम वालों को? मैं तो बहुत कॉमर्स वालों को जानती हूँ जो 99.8 99.9 वैसा परसेंटाइल लाए हैं, तो आई थिंक वो ला सकते हो, तो व्हाई कांट यू, सिंपल। तो नहीं अर्पिता, कोई डिफिकल्टी नहीं आती, ये हवाबाजी है सिर्फ कि इंजीनियर्स का मैथ्स अच्छा होता है, हमें पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और अगर थोड़ा ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा तो प्रॉब्लम बस, भी क्या है। राइट। मैं फिर से वही बोलूंगा कि लेट अस पिक अप दी सेक्शन। जैसे इस वीक इसी वजह से हम लोग संडे को अरिथमेटिक पे एक वर्कशॉप कर रहे हैं स्पेसिफिकली, बिकॉज वी वांट टू टेल देम द इंपॉर्टेंस ऑफ अरिथमेटिक। वो अच्छा हो गया तो अपना वैसे ही काफी काम हो जाता है। पता है स्नैप एंड मैट जैसे एग्जाम में तो सिर्फ अरिथमेटिक ही पूछते हैं वो, हाँ इट्स ऑल अबाउट अरिथमेटिक देयर। तो और ना डेफिनेटली फॉन्ट अच्छा में हो से सकता है। शॉर्टकट्स आई थिंक बहुत ज्यादा काम नहीं आते, मतलब मेरे को ये पर्सनली लगा, वो देखो भूल जो जाते हैं अपन शॉर्टकट्स जो वहां जाके। आदमी यूट्यूब वीडियोस इस वजह से देखता है कि उसको ट्रिक पता चल जाए, उसका कैट कभी हाँ क्लियर वो नहीं होता, टाइम वेस्ट है। वो वेस्ट ऑफ टाइम। वो सिर्फ जादू दिखाते हैं कुछ कोचिंग वाले या कोई भी सर्वर की आ जाओ बेटा, और वो जादू का कोई काम नहीं रहता, इट इज जितना डीप शेयर में हार्ड वर्क। कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ना उतना क्विकली बनेगा। मेरे को याद है मैं एक दिन पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट में, मैं कुछ डाउट आ रहा था, एकदम बेसिक था, तो मैं पूरा एक दिन उस पर स्पेंड की थी कि वो है क्या। जैसे डीप में समझेंगे ना तो वो फिर क्वेश्चंस बाद में बहुत इजीली बनते हैं, ये होता है। मैं अपने समय का भी अगर अनमोल एक एक्सपीरियंस शेयर करूं तो वो उस समय वो क्वेश्चन ज्यादा आते थे कि लास्ट 2 डिजिट क्या है किसी चीज का, टू द पावर वाले लास्ट हाँ 1 डिजिट क्या है, 2 डिजिट क्या है। तो उसके बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स हमारे कोचिंग में बता देते थे कि ये ऐसा ऐसा करो और निकाल दो। बिल्कुल समझ नहीं आता था ये ऐसा क्यों बोल रहा है, कि अगर ये लास्ट डिजिट ये है तो ऐसा कर लो। उसके लिए मैंने पूरा बाइनोमियल फिर से रिवाइज किया था और खुद से निकालना फिर सीख गया था कि कैसे निकाला जाता है। तो दैट गिव मी मच मोर सेटिस्फैक्शन देन एग्जैक्टली। लर्निंग द ट्रिक्स। ट्रिक्स को भूल जाता है कोई, किसी को याद नहीं रहता। और अरिथमेटिक सेक्शन में ज्यादा टाइम अरिथमेटिक को देना है, और उसके बाद फिर अलजेब्रा, फिर ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम। राइट, बिल्कुल सही ऑर्डर है, एलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड नंबर सिस्टम, बिल्कुल। और एलजेब्रा में भी अगर हम जाएं तो मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉग, हाँ लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन लॉग के तो पक्का ही आते हैं। पक्का आएंगे। हाँ ठीक, कोई मेरे ख्याल से पूरा अरिथमेटिक कर ले, लॉगरिदम्स कर ले, मेंसुरेशन कर ले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर ले और अच्छे से कर ले, तो उसका 95 परसेंटाइल क्वांट में आ जाएगा। हाँ करेक्ट। ठीक है। या एनी मोर क्वेश्चंस? राइट अनमोल, आई थिंक दैट इज इट। और लोग पूछ सकते हैं, मे बी 1-2 मिनट हम वेट कर ले तुम लोग का। और क्या मतलब कहाँ पर अभी फाइनल एडमिशन, अभी कहाँ पर लिया हुआ है एडमिशन? सर एसपी जैन में ले लिया मैंने। एसपी जैन ले लिया, तो आई एम इंदौर यू को के ऊपर तुम एसपी जैन को प्रेफर कर रही सर हो? सब तो यही बोल रहे हैं, मतलब मैंने इंदौर के स्टूडेंट से बात की, वो भी बोले कि
आई एम कंप्लीटली विथ यू, एसपी जैन को प्रेफर करो। और कोझिकोडे से भी कंपेयर करने में लोग एसपी जैन बोलते हैं। नहीं बिल्कुल, आप अभी IIM बैंगलोर, XLRI और FMS तो मेरा नहीं है, FMS तुम्हारा है नहीं, तो ये दोनों ही हम ऊपर रखेंगे, बाकी एसपी जैन। ठीक है, राइट। सो कॉलेज की तरफ से कुछ आया है कि कब से स्टार्ट होगा, क्या है? सर एसपी जैन का 17 में से फाउंडेशनल कोर्स कुछ है, वो मतलब अपने आप से करना रहेगा, और फिर जून एंड से कॉलेज शुरू होगी ऐसा बोल रहे हैं। वो कोर्स अच्छे से कर लेना, नहीं तो बाद में अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स बहुत ट्रबल देगा। हाँ सर, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होगी क्या, मतलब अकाउंट्स और फर्स्ट ईयर में काफी प्रॉब्लम होगी, मतलब वो एक अलग ही लेवल का प्रेशर होता है। मतलब आई हैव नेवर इन माय लाइफ फेस्ड सच काइंड ऑफ प्रेशर जो एमबीए का फर्स्ट टर्म देता है। फर्स्ट 1-2 वीक तो मस्ती में निकलता है, मतलब हमें लगता है अरे वाह जिंदगी बड़ी अच्छी हो गई है। उसके बाद जो वो प्रोफेसर टेस्ट वगैरह लेना चालू करते हैं, हालत खराब हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता। 10 वीक फट से पास हो जाते हैं, और फिर आपके उस समय आपको समर इंटर्नशिप का प्रेशर आ जाता है। तो फर्स्ट टर्म जो है बहुत हाई प्रेशर रहेगा, एंड यू मे फील कि एमबीए छोड़ देते हैं, इतना प्रेशर लेने की क्या जरूरत है। बट उसके बाद वो सब नॉर्मल हो जाता है, यू गेट यूज्ड टू इट एंड थिंग्स आल्सो बिकम नॉर्मल। तो कैट का प्रेशर भी कुछ नहीं है इसके सामने। नहीं, कैट का तो कुछ भी नहीं, यू जस्ट वेट फॉर योर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड समर इंटर्नशिप का प्रेशर ना। समर इंटर्नशिप पढ़ना चाहिए क्या, कॉलेज के पहले से पढ़े थे क्या? मुझे लगता है कि हम लोगों के समय उतना अवेयरनेस नहीं था, क्योंकि सोशली हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाते थे जो कॉलेज में जाने वाले थे। मुझे लगता है कि अगर मैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ के जाता तो मेरा स्ट्रेस कम रहता, मतलब बिल्कुल भी नहीं आता था। तो तुम्हें थोड़ा सा कर लेना चाहिए, और एक्सेल शीट में अच्छे से काम करना सीख जाओ। मतलब जो फॉर्मूले ड्रिवन चीजें होती है वो ऐसा नहीं, वो सेल्फ फिल करने वाला चीज ठीक है, तो वो सीख जाओ, और अकाउंट्स इकोनॉमिक्स थोड़ा सा कर लो, बेसिक्स हो जाएगा। ये निकाल लिए, वो भी निकाल लेंगे। वो तो क्या है ना कि हमारे साथ 200 लोग ऐसे ही होते हैं जो हमेशा प्रोफेसर को गाली बकते हैं, तो अपने आप सब चीजें निकल जाती है। तो बट ऑनलाइन होगा हमारा, शुरू तो ऑनलाइन ही होगा। वो थोड़ा सा है, कैसे होगा वो पता नहीं। एसपी जैन मुंबई, हर्षित या एसपी जैन मुंबई है। चिरायू इज आस्किंग नॉट श्योर व्हिच फील्ड टू सेलेक्ट आफ्टर सिलेक्शन। अरे चिरायू, किसी को नहीं पता होता, अभी मेरे को खुद को श्योर नहीं है। वो तो हम लोग ये सब भी देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या है, उसके हिसाब से आंसर देंगे। वहां जाके तो कुछ भी करेंगे, डोंट वरी अबाउट दोस थिंग। ठीक है, राइट। सो रिलेश इज आस्किंग व्हिच स्पेशलाइजेशन यू आर गोना चूज। अभी मैं ऐसे 100% श्योर नहीं हूँ, बट आई एम थिंकिंग अबाउट ऑप्स। रिलेश, कोई श्योर नहीं रहता, सब फर्स्ट ईयर के बाद बदल देते हैं। एमबीए गिव्स यू दैट फ्लेक्सिबिलिटी, तो व्हाई वी वांट टू हैव अ फिक्स्ड माइंडसेट। हाँ, मतलब अभी मैं मार्केटिंग वगैरह में घुसी नहीं हूँ, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली, इसलिए मैं ऐसे डिसाइड नहीं कर पाऊंगी अभी तो। ठीक है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच अनमोल, एंड रियली मतलब मजा आया बात करके। Thanks to you. I hope you enjoyed, and I hope the participants learned and enjoyed few things. Again, next week we will have another guest, and you people should join that session again. So, bye. All the best, Anmol. All the best, सबको. Bye. Thank you.